Welcome back, dear students. In the previous lecture, we tried to delve into the niceties of this dichotomy of human rights and vulnerable groups, and we tried to understand how human rights are specifically designated and directed towards the protection and promotion of the rights of vulnerable groups. और हमने आपको उसमें बता दिया कि वल्नरेबल ग्रुप्स बहुत तरह के होते हैं एक्चुअली इनकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है बट दीज आर दोज पीपल और masses of the population who face greater or higher risks of social exclusion or ostracization or discrimination or victimization because by reason of their place or gender or situation or their timidness or any disease or any condition or even age. तो उसमें हमने आपको गिना दिया there are more than 10 to 12 groups जो vulnerable groups में आते हैं. For example, there are women, there are refugees, children, indigenous people, disabled people, HIV patients, and gypsies on the basis of race, etc. Similarly, transgenders. And national minorities also. In the previous lecture, we tried to understand the position of refugees. Today, we'll try to discuss the position of women as vulnerable groups. Human rights mechanism चूँकि बहुत जगह बिखरा हुआ है, so if we try to consolidate the provisions with respect to women, the principal document जो women को protect करता है वो तो सीडा ही है 1979 का. But before coming to that, कुछ provisions और भी हैं कहीं कहीं या कुछ conventions थे जो एक form of rights को women के protect करता है, तो उनका बस रेफरेंस हम देना चाहेंगे. फॉर एग्जांपल ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के एक कन्वेंशन है 1949 का 1949 ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन एक्सप्लॉयटेशन टू प्रोस्टिट्यूशन है. ये मैं शॉर्ट एक्रोनिम्स में नाम लिखूंगा इनका. इसी तरह कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल राइट्स ऑफ विमेन है 1952 का. कन्वेंशन ऑन political rights of women, rights of women 1952. Similarly, there is one more convention on nationality, UN convention on nationality of married women 1957 है ये convention on UN convention on nationality of married women, because this also was a transnational issue. Women getting married across national frontiers or the national borders of their nations face difficulties in certain matters of nationality, etc., and social exclusion, and especially in the scenario where there are rivalries between the member states or parties involved in the case. So ये कुछ प्रोविजंस है. इसके अलावा अगर हम एक और प्रोविजन पे रिलाई करें वो आर्टिकल 7 है, रोम स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 1998 का. ये कई फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन को कंसिडर करता है, रिगार्ड करता है या मानता है दैट दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. क्योंकि आईसीसी में डिस्क्रिशन है कि इन अपार्ट फ्रॉम द आईसीजे में स्टेट्स पार्टीज बनती हैं या इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बट आईसीसी में पर्सन्स को वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और किया भी जाता है. सो सर्टेन फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, फॉर एग्जांपल रेप है, इसी तरह सेक्सुअल स्लेवरी है, एनफोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन है, और फोर्स्ड प्रेगनेंसी है, और इवन एनफोर्स्ड स्टरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस जो विमेन के अगेंस्ट हो, दे आर कंसिडर्ड एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है. बट वी वुड से कि ये निगेटिव राइट्स हैं, राइट्स जो एक्चुअली पॉजिटिव राइट्स ह्यूमन राइट्स देने हैं
for uplifting the quality of life, वो consolidated अगर हम देखेंगे the principal document with respect of those rights, those positive rights is CEDAW. And it is the principal and biggest document rather, with respect biggest in the sense that इसका एक vast expansive mechanism है और रेटिफिकेशन भी बहुत मास लेवल पे हुआ है. हम इसको शॉर्ट में CEDAW लिख लेते हैं. Convention on all forms of Convention on protection of all forms of discrimination against women. Yes, ये 1979 का है, and it came into force, entered into force in 1900. ये दिसंबर के आसपास आया था, by the end of 79, and it entered into force in 1981. These dates are material in the sense कि कभी कभार ये examination में multiple choice question या very short answer पूछा जाता है. India's position यही बताऊंगा briefly about this ratification because वो थोड़ी precarious position है. 1979 में ये आया, 1981 में ये enter हुआ force में. India signed this treaty in 1980, just signature, and finally ratified in 1993, which is very surprising to note. And it is the time जब conference on human rights हुई, and there was pressure from all groups that this treaty must be ratified by India. So इसका एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी है 2000 का, जिसे ऑप्सीडॉ भी कहा जाता है. But India has not ratified this optional protocol. We'll go to that, हम इसमें बाद में जाएंगे. मगर ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल का प्री कंडीशन यही है कि ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल वही रेटिफाई कर सकता है जिसने सीडा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट रेटिफाई किया हुआ है. So this is open only to the state parties of CEDA 1979. CEDA is often termed as International Bill of Rights for Women because this is the most central piece of instrument or international legislation, we would say, जिसमें women के certain rights एनश्राइन किए गए हैं और एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया है इन राइट्स के इन्फोर्समेंट का या मॉनिटरिंग सिस्टम है. एंड प्लस कुछ और फीचर्स हैं कि राइट्स के बहुत यूनिक फॉर्म प्रोटेक्ट किया गया है. हम उसमें ब्रीफली डिस्कशन में जाएंगे. But before that, I'll give you an overview of the provisions. This CEDA contains a preamble, और ये preamble बहुत लंबा चौड़ा है. It refers to the charter, the UDHR as well, and that women को discrimination होता है और बहुत लंबा चौड़ा. And then state parties make their commitment to protect and safeguard the rights of women under this convention. And then it has 30 articles primarily which delineate those rights in various forms, जिसमें positive and negative rights दोनों हैं. If we go through the mechanism of this enforcement of these rights, we'll find that कि एक कमेटी इसकी भी है जिसे सीडा कमेटी कहते हैं. जैसे हर ट्रीटी के मैंने आपसे कहा था कि जो भी ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म होता है इट्स इन्फोर्स्ड और जो मॉनिटर थ्रू अ ट्रीटी, और हर एक की अपनी अपनी ट्रीटी है. इसकी भी एक ट्रीटी है जो आर्टिकल 17 के अंडर इस्टेब्लिश की गई है. वो प्रोविजंस को डिस्कस करते वक्त हम बताएंगे. और प्लस जो इन्फोर्समेंट के एस्पेक्ट में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, रादर थ्री. वो एक तो नंबर वन कि इट सेज दैट एक कमेटी होगी जो इसको मॉनिटर करेगी स्टेट पार्टीज का कंप्लायंस, और दूसरा कि हर स्टेट पार्टी रिपोर्ट देगी, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 18. एंड तीसरी चीज़ कि डिस्प्यूट्स या जो भी इंटरप्रिटेशन को लेकर के होंगे
it will be referred to the International Court of Justice as per Article 29. So it's a very unique mechanism क्योंकि principally जो इसके features में आता है कि this is the first instrument that has extensively or sweepingly tried to define discrimination क्या चीज़ होती है women के against. Article 1 of this convention defines discrimination. Discrimination क्या होता है और वो discrimination की definition बहुत लंबी चौड़ी है which covers that discrimination is any form of distinction or exclusion or restriction which is made on the basis of gender, rather sex use हुआ है वहाँ पे and which has the effect of impairing or nullifying the recognition or enjoyment of or exercise of rights by women or even the marital status or is not based on the equality. So ये सारा discrimination की सारी forms जो भी हो सकती हैं जिसमें political है, economic है, social है, cultural है और even civil है, वो सारी forms discrimination की cover की गई हैं Article 1 में और ये इसका जो essence है थोड़ा बहुत हमें जो principle of non-discrimination है वो UDHR में भी था but it was not in that sense Article 2 of UDHR. This is a constant thread of जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो उसका थ्रेड जो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इसमें आर्टिकल 2 और यूडीएचआर में मिलता है हमें. इसी तरह कॉमन आर्टिकल जो है आर्टिकल 3 ऑफ ICCPR और IC या ESCR या कॉमन आर्टिकल तो नहीं है बट कॉमन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों कन्वेंशंस के आर्टिकल 3 में ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिकग्नाइज किया गया है बट क्योंकि सीडा एक ऐसा कन्वेंशन है जो स्पेसिफिकली विमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है सो इट हैड टू स्टार्ट विद दिस नोशन दैट डिस्क्रिमिनेशन ही को पॉजिटिवली और निगेटिवली प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है. सो आर्टिकल 1 इसको डिफाइन करता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा. बहुत लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन है. इट्स वन ऑफ द longest descriptions in international instrument जिसने सारी forms of social exclusion को जो भी किसी भी बेस पे होगी for example political हो, economic हो, social हो, cultural हो, civil हो या किसी और form में हो, rather इसमें आप देखेंगे आगे customary और traditional discrimination जो होता है उनको भी stamp out करने की कोशिश की गई है. इसी तरह equal rights of men and women in public life ये आपको आर्टिकल्स 5, 7 और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनमें से उनकी तरफ रेफर करूंगी जैसे आर्टिकल 11 है. आर्टिकल 11 में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक तो है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन. ये लिखना ज़रूरी है. इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन. इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन and which involves choice of curricula. ये एक राइट है जो आर्टिकल 11 ने प्रोटेक्ट किया है. इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड इक्वल चॉइस ऑफ करिकुला. दैट करिकुलम जो डेजिग्नेट किया जाएगा पढ़ने के लिए women shall have the equal choice of curricula. ऐसा नहीं कि इनको एक्सक्लूड करके कुछ डिफरेंट सिलेबस या करिकुला पढ़ाया जाएगा. इसी तरह इसमें है गारंटीज ऑफ जॉब सिक्योरिटी. गारंटीज ऑफ जॉब सिक्योरिटी और ये जॉब सिक्योरिटी इन द सिचुएशंस ऑफ मैरिज और मैटरनिटी है. ये सिर्फ आम हालात में नहीं है, मैरिज और मैटरनिटी की हालत में गारंटीज ऑफ जॉब सिक्योरिटी. और थर्ड है जो बहुत यूनिक फीचर है एंड दिस इज मोर सूटेड टू द वेस्टर्न लाइफस्टाइल दैन द ईस्टर्न लाइफस्टाइल. दैट इज व्हाई बहुत सारे कमेंटेटर्स कहते हैं कि
ह्यूमन राइट्स का जो नैरेटिव है, ये पहले ही बताया था हमने आपको, ये यूरोसेंट्रिक बहुत है, बिकॉज सोशली अडेप्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूनिवर्सलाइज करने से ह्यूमन राइट्स को. फॉर एग्जांपल लुक एट दिस राइट, दिस इज द राइट ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज. चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे हर स्टेट में. और रीज़न क्या होगा इसका, आप रीज़न अगर देखेंगे यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दे वांट टू एस्टैब्लिश द चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ फॉर कॉम्बिंग फैमिली ऑब्लिगेशंस, फॉर कॉम्बिंग फैमिली ऑब्लिगेशंस. So but surprisingly you would see that traditionally इंडिया में या थर्ड वर्ल्ड नेशंस में, जिनमें भी डेवलपिंग नेशंस हैं, उनमें सर्टन प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत यूनिक हैं और इंडिजीनियस हैं in matters of raising children or etc. For example, you will see in the tea gardens of Assam workers carrying their children और वो on their backs, और या राजस्थान में. बट ये चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ जो है ये स्पेसिफिकली एम्ड है फॉर कॉम्बिंग दिस फैमिली ऑब्लिगेशंस. और आगे भी इसमें फैमिली ऑब्लिगेशंस को कॉम्ब करने के लिए कई सारे प्रोविजंस हैं. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16 है जो बहुत ज़्यादा ख़ास है इस मसले में, विल कम टू दैट. बट उससे पहले आर्टिकल 15 है जिसमें लीगल इनकैपेसिटीज़ के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको अवॉइड करने के लिए स्टेट पार्टीज प्लेज ले लेती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में हो. आर्टिकल 15, दिस इज़ ऑल्सो, ये सारे नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रोविजंस आपको दिखेंगे और इनका मकसद यही है. आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स दैट जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे लीगल इनकैपेसिटीज़ होती हैं या समझी जाती हैं, women को दी जाती हैं only on the basis of gender, they shall be deemed null and void. You'll find there that they shall be deemed null and void. इसी तरह specific problem of rural women, वो तो आर्टिकल 14 में है. yes, रूरल women को लेकर के प्रॉब्लम्स को डील किया जाना स्पेसिफिकली, उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को, ये आर्टिकल 14 में है. आर्टिकल 16 इस ज़िमन में बहुत ज़्यादा ख़ास है बिकॉज आर्टिकल 16 हैज़ बीन ए बोन ऑफ कंटेंशन एंड रादर इंडिया ने रिजर्वेशन किया हुआ है. वी वोंट से रिजर्वेशन, हम उस पार्ट पे आएंगे, दैट इज़ अ डिक्लेरेशन रादर नॉट रिजर्वेशन. बट आर्टिकल 16 इज़ द मेजर provision of the convention. This article 16 which protects certain rights of women. अब उनको वन बाय वन डिस्कस करना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा. उसमें फॉर एग्जांपल इक्वल राइट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड मैरिज को एंटर होने के लिए फ्री कंसेंट एंड सेम राइट्स. और इट्स आयरॉनिकल कि सेम राइट्स रिपीटेडली फ्रेज यूज हुआ है, नॉट इक्वल राइट्स. सेम राइट्स टू एंटर इनटू द मैरिज and same rights with respect to the number of children and spacing of the children and certain matters जो कि वेस्ट का एक पूरा लाइफस्टाइल है और ईस्ट में इन प्रैक्टिस नहीं है and to a larger extent. बट इसी तरह के जो मैट्रिमोनियल लाइफ है उसमें राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, जिसमें से फॉर एग्जांपल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जो सारे मैरिज के नतीजे में आ जाते हैं. एंड मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑल्सो और सर्टेन अदर प्रोविजंस. इसमें 16(2) है जिसको लेकर के इंडिया ने रिजर्वेशन जताया हुआ है, डिक्लेरेशन जताया हुआ है. विल कम टू दैट पार्ट इन अ वाइल, बट हम अभी प्रोविजंस को देख रहे हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन अगर हम देखें इस हिसाब से जो इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के है, दैट इज आर्टिकल 16. और बल्कि दोनों है, आर्टिकल 16 और 17 दोनों को एक साथ समझना चाहिए. आर्टिकल्स 17 और 18,
पार्डन अगर मैंने 16 पहले कहा, 17 एंड 18। आर्टिकल 17 एस्टैब्लिश करता है कि इस कन्वेंशन के राइट्स को मॉनिटर करने के लिए या इस कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रादर उसको बॉडी को रिकॉग्नाइज करता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बॉडी होगी जिसका नाम होगा कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसे हम सीडॉ कमेटी कहते हैं इन शॉर्ट, सीडॉ कमेटी। ये एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की एक कमेटी है जिसके मेंबर्स 23 होते हैं और आयरॉनिकली इसमें विमेन रिजर्वेशन है नहीं और होना चाहिए था, मेन भी मेंबर होते हैं, बट येस इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर विमेन देयर एंड इसमें 23 मेंबर्स होते हैं और उनको इट्स अ यूनिक कमेटी जिसके मेंबर्स को सैलरी भी मिलती है। अदरवाइज इंडिपेंडेंट मेंबर्स वॉलंटरी बेसिस पे काम करते हैं, उनको सैलरी नहीं होते हैं, दे वर्क प्रो बोनो। बट सीडा कमेटी के मेंबर्स को सैलरी, उनकी सैलरी प्रोविजंस को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है अंडर आर्टिकल 17 एंड अंडर आर्टिकल 18 रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फिर रिकॉग्नाइज किया गया है दैट स्टेट पार्टीज जो भी होंगी वो रिपोर्ट करेंगी एनुअली, जो ही साइन करेंगे इस ट्रीटी को रेटिफाई करेंगे उसके एक साल के अंदर अंदर वो इन प्रोविजंस की कंप्लायंस का रिपोर्ट भेजेंगे। अब वो रिपोर्ट जब आ जाता है तो कमेटी उसको मॉनिटर करती है, रीड ओवर करती है और फिर उसके बाद वो मैकेनिज्म हम समझेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस सीडा कन्वेंशन उसमें, बट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म 18 में है। एंड इसी के साथ अगर हम समझें एक और प्रोविजन दैट इज आर्टिकल 29, वो ये कहता है कि अगर कोई इन केस देयर इज एनी डिस्प्यूट और between two or more states in respect of interpretation or application of the provisions of this convention, it shall be first settled by negotiation। और अगर ये negotiation से नहीं settle हुआ, ये आर्बिट्रेशन से होना चाहिए, और अगर इन दोनों मोड से नहीं हुआ, आर्बिट्रेशन का जो मोड है it will further culminate into this dispute being referred to International Court of Justice, ये ICJ को चला जाएगा। और ये एक प्रोविजन है, इंडिया हैज़ मेड वन रिजर्वेशन रिगार्डिंग सीडा और वो ये रिजर्वेशन है, डिक्लेरेशन भी है, उस पर थोड़ी देर में आ रहे हैं। But that is all about the overview of these provisions. Now we will come to the unique features जो इसके सीडा के हैं, या हम उनको स्पेशल फीचर्स भी कह सकते हैं। हाइलाइट्स, रादर कुछ उसमें से पार्ट रिडंडेंट होगा जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, बट कुछ पार्ट अभी अनडिस्कस्ड है। Number one, we can say that this CEDA is a comprehensive document in relation to other documents or instruments. A comprehensive instrument भी कह सकते हैं in relation to other human rights instruments relating to the protection of women. CEDA is a comprehensive international document which deals with a wide range of women rights issues or human rights of women. For example, civil, political, economic, social, and many others. And iska jo hai, this is aided by this comprehensive definition of or sweeping definition of discrimination, which has been provided itself in Article 1. इसी तरह नंबर 2 फीचर जो इसका होगा वो ये है कि इसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 7 प्रोटेक्ट किए गए हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दैट इज, एंड जनरली दीज राइट्स आर nations are quite reluctant to identify and protect these rights in case of vulnerable groups and more specifically in case of women also. तो इसमें राइट टू वोट है, जैसे राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एट्सेट्रा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन सारे,
ये राइट्स रिकग्नाइज किए गए हैं। ये एक अनदर फीचर है जो इसका हम कह सकते हैं कन्वेंशन का है। नंबर थर्ड इज अबाउट द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इकोनॉमिक, social and cultural rights, that is second generation rights. These rights also are enshrined in this convention. अगर हम देखेंगे उसमें जैसे सोशल सिक्योरिटी का राइट है और प्रोटेक्शन है, इसी तरह मैटरनिटी के मामले में जो प्रोटेक्शंस हैं या फैमिली ऑब्लिगेशंस के मामले में जो है ये सब आर्टिकल 4 में है या आर्टिकल 11, 16, these rights, economic, social and cultural rights protect किए गए हैं। एंड इसके अलावा जो इसके प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है, अब उसकी तरफ आते हैं। मेनली एनफोर्समेंट इज डन और अचीव्ड थ्रू मॉनिटरिंग सिस्टम, जो जनरली ट्रीटीज का होता ही है। एक रिपोर्टिंग है और दूसरा मॉनिटरिंग हम कह सकते हैं। रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, यही दो मेजर काम होते हैं। इसके अलावा भी होता है, हम उस पर थोड़ी देर में आ रहे हैं। आर्टिकल 17 कमेटी को इस्टेब्लिश करता है, अभी बताया आपको, और आर्टिकल 18 मेंबर स्टेट्स को बाइंड करता है कि वो कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करें, और इनिशियली आफ्टर 1 year ऑफ रेटिफिकेशन देनी पड़ती है रिपोर्ट, एंड देन रिपोर्ट फॉलोज बाय जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, जिसमें जो 23 मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं कमेटी के, वो उस पर डिलिब्रेशन करते हैं, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होता है, एंड दैट इज बीइंग हर्ड। और ऐसा नहीं है, टेसिट प्रेशर बहुत क्रिएट किया जाता है, अभी थोड़ी देर में आएंगे उसकी तरफ। मॉनिटरिंग में एक चीज और है कि पैरेलल और शैडो रिपोर्ट्स जिन्हें हम कहेंगे, शैडो रिपोर्ट्स आर फाइल्ड बाय एनजीओज, और बहुत सारे एनजीओज हैं। फॉर एग्जांपल कई सारे एनजीओज ने इंडिया से कई बार कुछ इंडिजिनस प्रैक्टिसेस के खिलाफ भेजा। इवन फॉर एग्जांपल आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के अंदर जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को कई बार एनजीओज ने रिपोर्ट्स में कहा और ये रेकमेंड भी किया दैट that should be removed in respect of offenses against women or sexual offenses directed against women, and normal course के trials चलने चाहिए रेगुलर कोर्ट्स में। तो शेडो रिपोर्ट्स भी जाती हैं एनजीओज की तरफ से, और फिर वो सब को डिलिब्रेट या कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स के बाद रिकमेंडेशंस आती हैं कमेटी की तरफ से, और वो आर्टिकल 21 के अंडर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के बाद मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लेकर के सीडॉ कमेटी रिपोर्ट्स दे देती हैं या रिकमेंडेशन देती हैं, या जनरल कमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, जनरल कमेंट्स के फॉर्म में भी कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं कमेटी की तरफ से या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो हैं इनके। इसके अलावा जिसे हम ऑप्शनल प्रोटोकॉल कहते हैं, जो हमने बताया था आपको कि ये बहुत बड़ा, इट वाज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग दिस मैकेनिज्म, ये बड़ी स्ट्रांग चीज़ आ गई थी जिसे हम ऑप सीडॉप भी कहते हैं, ऑप्शनल प्रोटोकॉल। और ये मेंबर स्टेट्स जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं वही इसको रेटिफाई कर सकते हैं, एंड इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड इट। इंडिया ने मेन कन्वेंशन को रेटिफाई किया 1993 में, एंड इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने कई बार मोबिलाइज करने की कोशिश की है एनजीओज को एटसेट्रा दैट इंडिया शुड रेटिफाई दिस, मगर अभी तक ये हुआ नहीं है, बिकॉज ये जो है ऑप्शनल प्रोटोकॉल ये बहुत स्ट्रेंथन करता है ये इस मैकेनिज्म को बाय प्रोवाइडिंग फॉर इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म, इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म। तो ग्रॉस वायलेशन ऑफ विमेन राइट्स और प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन अगर हो रहा हो तो देयर कैन बी इंडिविजुअल कंप्लेंट्स, और वो ऑप्शनल प्रोटोकॉल के अंडर डायरेक्ट मेंबर इंडिविजुअल कंप्लेंट जा सकती हैं ऑन that member state is violating certain provisions or
पार्ट्स ऑफ द कन्वेंशन और ट्रीटी, और फिर वो कंप्लेंट सीडा कमेटी के पास जाती है, एंड देन केसेस इन एक्सट्रीम केसेस रेफर भी कर दिए जाते हैं टुवर्ड्स, और इसमें एजुडिकेटरी और डिक्लेरेटरी ओपिनियन भी आते हैं. देयर आर सम जजमेंट्स, 5 या 6 ही जजमेंट्स अब तक आई हैं इस पे, और बट थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश की गई मैकेनिज्म को इस प्रोटोकॉल से. क्योंकि जो 185 या 86 मेंबर स्टेट्स हैं मेन कन्वेंशन के, उसमें से बहुत कम ने अभी तक ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया हुआ है. Now we will switch towards another theme which is very important, India and CEDAW. इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है. एक तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, एंड दैट्स कांस्टेंट, वो तो विद और विदाउट सीडा आपको मिलता रहेगा. फॉर एग्जांपल DS नकारा की जजमेंट है मधुकेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस तरह माधुरी चौधरी, और भी कई सारी जजमेंट्स हैं. तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो है ही इस डायरेक्शन में, बट सीडॉ के अंडर कमेटी ऑफ नेशंस जो हैं प्लेज करते हैं कि हम लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम्स में कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे, या इन मैकेनिज्म्स के थ्रू कन्वेंशन के जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे थ्रू स्ट्राइविंग थ्रू जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म्स. तो इंडिया एंड सीडॉ, जैसे कि हमने आपको बताया कि सीडा का रेटिफिकेशन इंडिया में इटसेल्फ बहुत लेट हुआ 1993 में, और एंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल का तो अभी तक हुआ ही नहीं है. बट इवन आफ्टर द रेटिफिकेशन इंडिया ने, एक चीज़ होती है डेक्लरेशन, और एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिजर्वेशन. और ये आप जानते हैं कि रिजर्वेशन क्या है, कि रिजर्वेशन में मेंबर स्टेट ये डिक्लेयर करती है या ये असर्ट करती है दैट इस प्रोविजन के से या इस कन्वेंशन के XYZ प्रोविजन से हम बाउंड नहीं होंगे. क्लियरली रिजर्वेशन. और डिक्लेरेशन जो है, द स्टेट पार्टी डज नॉट डेनिग्रेट और डिनाई टू बी बाउंड बाय द प्रोविजन, मना तो नहीं करते हैं, बट दे स्पेसिफिकली एक्सेंचुएट देयर पोजीशन. वो ऐसे बताते हैं हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमारा इसका कंप्लाइंस मुश्किल है, या एक ऐसी स्पेसिफिक पोजीशन है जिसमें जो है इसकी कमिटमेंट, तो द कमिटमेंट ऑफ द नेशन स्टैंड्स कि वो फुलफिल करेगा, लेकिन गिविंग टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन या कोई एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट, इसमें full competence or achieving the full realization of that provision or that obligation is practically difficult. ऐसा इसमें दो प्रोविजंस को लेकर के, एक तो आर्टिकल 5A और आर्टिकल 16, यस, आर्टिकल 16 को लेकर के डिक्लेरेशन किया है इंडिया ने, और एक रिजर्वेशन है. देयर इज वन रिजर्वेशन विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 29. आर्टिकल 29 आप जानते हैं दैट इसमें ICJ की तरफ रेफर किया जाएगा डिस्प्यूट्स को, और ये जो होते हैं ना, ये डिक्लेरेशन और रिजर्वेशन के लॉज जो वेना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, उसमें ये सारे लॉज जो है कंपाइल्ड है, और उसमें ही डिक्लेरेशन की डेफिनेशन और रिजर्वेशन की है, वेना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज. तो रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 29 में ये है कि दैट अगर इंटरप्रिटेशन को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है मेंबर स्टेट्स में और स्टेट पार्टीज में, सो इट शैल बी रेफर्ड टू द ICJ. इंडिया हैज मेड रिजर्वेशन इन दैट रिस्पेक्ट, कैटेगोरिकली डिनाइंग कि ICJ को रेफर नहीं किया जाएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज केस. बट विद रिगार्डिंग टू द डिक्लेरेशन, जैसे 5A है, 5A में बहुत यूनिक पोजीशन है इंडिया की. इसमें एक्चुअली क्या है कि 5A में सर्टेन कल्चरल और हिस्टोरिकल नेशन के कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं,
और member states obligation लेते हैं that they will modify such social and cultural patterns in which accentuate or which perpetuate discrimination through the patterns of conduct of men and women, और जिसमें customary prejudices हों, जैसे customs में होता है ना कुछ customary prejudices या other practices भी हो सकते हैं इसमें. एंड यू वेल नो आवर सोसाइटी, और सोसाइटी में बहुत सारे प्रैक्टिस का पार्ट होते हैं, और एनी अदर आइडिया ऑफ इंफीरियरिटी और superiority, idea of inferiority of one gender over the other or superiority of one gender over the other, or stereotyped roles of men and women. ये चार-पांच चीज़ें हैं 5A में, और इसमें रादर चूँकि इंडिया की पोजीशन ये है कि यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है और डाइवर्सिटी है रिलीजन्स की, फेथ की, बिलीफ्स की, तो ये प्रैक्टिकली अनअटेनेबल लगता है. सिमिलरली 16 में जो है, 16 भी नहीं, 16(2) कहा जाएगा इसको, हाँ 16 क्लॉज 2 में ही है, आर्टिकल 16(2) में दो बड़ी अहम चीज़ें हैं. और डिक्लेरेशन में आप देखेंगे इंडिया हैज़ क्लियर्ड इट्स पोजीशन ऑन द लेट पार्ट ओनली और नॉट ऑन द प्रीवियस पार्ट. The later part is about compulsory registration of marriage. Compulsory registration of marriage. और इसमें एक्चुअली इंडिया ने ये पोजीशन की है which is to a certain extent correct कि in such a vast nation जहाँ इतनी ज़्यादा आबादी है और इतना डाइवर्सिटी है कल्चर की एंड जियोग्राफिकली इतना बड़ा है, compulsory registration is practically unattainable. This is more or less, or to certain part we can say it's correct to certain part, but it also contains specifying a minimum age for marriage, although there are various legislations which are directed at protecting child marriages, but कोई जनरल कमेंट्स में आपको कोई कमेंट नहीं मिलेगा इस पार्ट को लेकर के. एंड 16(2) में ये सीधा ये कैटेगोरिकली रन करता है, एक पार्ट के मिनिमम एज स्पेसिफाई करना, एक तो ये ऑब्लिगेशन, और दूसरा ये टू मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एंड कंपल्सरी इन एन ऑफिशियल रजिस्ट्री. एंड दिस, इसके मामले में इंडिया ने डिक्लेरेशन किया है इन दो प्रोविजंस को. जुडिशरी, आपको थ्रू जुडिशरी कुछ जजमेंट्स हैं जो देखनी चाहिए. फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली जो सीडॉ पे रिलाई करती हैं, उसमें जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, या रिसेंटली कुछ और जजमेंट्स भी हैं जैसे चारों खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, दीपक मिश्रा की जस्टिस. एंड देयर इज वन मोर, चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास, जिसमें स्पेसिफिकली सीडा के प्रोविजंस पे रिलाई किया गया था. विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बट चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास में उसको कंपनसेशन मिला ऑन द बेसिस दैट it has been India's obligation under CEDAW. और इसी तरह विशाखा में, though there was no practical mechanism for protecting women at workplace against sexual exploitation, but उसको protect किया गया by referring towards the provisions of CEDAW. Similarly, चारों खुराना की judgment है. There are some certain other judgments जिनको हम description में इसके वीडियो के डाल देंगे होपफुली. और इसके अलावा कुछ ट्रांसनेशनल जजमेंट्स भी हैं जो देखने के काबिल हैं. उन जजमेंट्स में अमीरुद्दी वर्सेस मॉरिशियन वुमेन है, शायद मॉरिशियन वुमेन है या मॉरिशियस है, और हंगरी की एक जजमेंट है, और नेदरलैंड्स की भी है एक है, नुगेन वर्सेस नेदरलैंड्स. इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हर एक ट्रीटी की बहुत ख़ास चीज़ होती है, वो प्रिपेयर करना, उस डायरेक्शन में हर एक
ट्रीटी प्रोविजंस के इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, जो रिपोर्टिंग है, ओवरव्यू है, वो समझना ज़रूरी है। उसमें जो भी आपको प्रैक्टिकली टेक्स्ट बुक्स मिले उनमें इस पे थ्रस्ट होना चाहिए मेजरली, नॉट ऑन द प्रोविजंस के अंदर क्या है। यू कैन सम अप द प्रोविजंस इन 1 or 2 पैराग्राफ्स। और इसके अलावा जो जनरल रिकमेंडेशंस हैं सीडॉक कमेटी के, उसमें कुछ रिकमेंडेशंस नंबर्स से मशहूर होते हैं। उनको जनरल रिकमेंडेशन नंबर 1, रिकमेंडेशन 2, रिकमेंडेशन 3 कहा जाता है। तो उनमें कई सारे जनरल रिकमेंडेशन हैं, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में जनरल रिकमेंडेशन 12 है, इक्वल रेम्यूनरेशन पे है रिकमेंडेशन नंबर 13, इसी तरह एड्स को लेकर के है जनरल रिकमेंडेशन 15, और भी कई जनरल रिकमेंडेशंस हैं। माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ विमेन जो है, विमेन माइग्रेंट वर्कर्स पे है जनरल रिकमेंडेशन नंबर 25 है या 26 है। इस तरह कुछ जनरल रिकमेंडेशंस हैं, वो उनको रेफ़र किया जाता है जिनका टेसिट प्रेशर होता है एक मेंबर स्टेट पे। और ये इनको देखें। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर।